Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav, and in the continuation of the DP series, the ongoing DP series on this particular channel, the question that today we are going to solve is nothing but the rope cut problem. Okay, so it is a very standard problem, you can say. Okay, so in this what you are given a length of the rope. Let's say this is the rope that we are having, and okay, let me just draw it once again. Okay, so let's say this is the rope that we are having, and it is having a length 4, and you are given 3 x, y, z values. Suppose x is 2, y is 1, and z is 1. So you have to cut this rope with either x, either y, or either z in such a way that the cuts is maximum, right? What you have to do, you have to maximize the cut. So in this 4, what you can see, okay, if I did 1 1 1, okay, so what will be the pieces that you will get? That at the end you will get 4 pieces. Okay, you can cut this rope into 4 pieces, right? So you have to maximize this in that way. So this is the question. The question is a standard one. It is one of the variants of the standard knapsack problem. We will discuss that how it is a variation of a knapsack problem. But before starting with that, I will really like to introduce you to Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to learn and grow together, right? So talking about Newton School, School is a platform that helps you to build your career in tech specifically. Newton School is having a 6 months long curated course in which they help you to become a full stack developer. And the best thing about Newton School is that it is connected to a lot of companies. So after you got your course completed as a full stack developer, it helps you to get placed. And another amazing aspect about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed, right? So आप place हो चुके हैं, आपकी salary आ रही है, and from that you have to pay a part to the Newton School, and that is how they work. And it is such an amazing opportunity. So if you are interested, do enroll in it, guys, as soon as possible. So this was it for Newton School. Now let's get back to our topic. So rope cut problem that we are having, we have to maximize the cuts. So in order to maximize the cuts, what you have to do, you have to cut the rope in such a way with the help of x, y and z. तो जो हमारे एंड में कट्स बचे वो मैक्सिमम हो. तो अब ये मैंने बोला था कि वेरिएशन है नैपसैक की, बट हाउ? तो नैपसैक का हम प्रॉब्लम कर चुके हैं डीपी सीरीज़ में, हमारी सेकंड या थर्ड वीडियो ही थी. अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो. तो नैपसैक में हम क्या कर रहे थे कि वी वर हैविंग अ नैपसैक एंड वी वर हैविंग ऑल दिस आइटम्स. तो हमें वो आइटम्स भरने थे सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द वैल्यू. ठीक है, अभी हमारे पास कट्स है, हमें कट्स लगाने हैं सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज द पार्ट्स, राइट? So it is more of a knapsack problem. So first let's discuss the approach, that how we will deal with this, and then we will see that how we can code it, and at the end we will see that okay, let's how we can do it. ठीक है, तो particular at each option देखो knapsack क्या होता है, 0 1 knapsack. So first we identified कि okay knapsack का ही variation है. अब knapsack में मुझे क्या देखना है कि knapsack होता है 0 1, either I can take it और नॉट टेक इट, आइदर आई कैन टेक इट और नॉट टेक इट. एट द एंड आई विल सी दैट क्या मैक्सिमम मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, वी विल गेट विद दिस, राइट? तो नैपसैक का जो हमारा प्रॉब्लम था, तो सिमिलरली अगर मैं इसको रोप वाली से प्रॉब्लम से करूं, तो मेरे पास x2 है, y1 है और z1 है, और मेरी रोप की लेंथ है 4, राइट? तो अब अगर मैं जैसे सपोज 2 से एक कट लगा दिया है ना, तो अब मेरे पास लेंथ कितनी बची? जैसे मेरे पास ये इनिशियल लेंथ है 4, ठीक है, फर्स्ट मैंने 2 से एक कट लगा दिया, तो मेरी लेंथ कितनी बची? 2, ठीक है. अब उसके बाद वापस मैंने 2 से एक कट लगा दिया, तो मेरी लेंथ कितनी बची? 0. लेंथ 0 और मेरे पार्ट्स थे 2, राइट? तो ये मेरे पास एक ऑप्शन हो गया. तो मैंने एक पार्ट्स वेरिएबल ले लिया, इसमें 2 स्टोर कर दिया. अब मैं रिकर्सिवली गया कि अगर मैं यहाँ पे जाके 2 की जगह अगर मैं 1 ले लेता, फिर मेरे पास बचता 1, उसमें भी 1 ले लेता, तो 2 1 एंड ओके 2 and 1, ओके दैट विल बी द एंड ऑफ द प्रॉब्लम. तो 2 and 1 अगर मैं ले लेता, तो ये एक यहाँ पे 2 का कट हो गया, एक यहाँ पे 1 का कट हो गया, एक यहाँ पे मेरा 1 का कट हो गया. तो मेरे पार्ट्स कितने हो गए? 3. सिमिलरली अगर मैं वापस रिकर्सिवली कॉल करके
z पे जाता हूँ तब भी यही मेरा पार्ट आता, तो ये एक मेरा हो गया पार्ट 3। अब मैं वापस रिकर्सिवली कॉल करूँगा कि अगर यहाँ पे 4 में मैंने 2 की जगह 1 कट किया होता, अगर मैंने 1 कट किया होता तब मेरे पास कितना बचता, अगर मैंने 1 कट किया होता तो मेरे पास बचता 3, राइट। तो अब ये क्या, पहले मैंने 1 कट किया, फिर उसके बाद 3, अब मैंने 3 में सपोज करो पहले 2 कट कर लिया, 3 से मैंने 2 कट कर लिया, तो बचा कितना 1, और 1 से 1 वापस, तो वापस पार्ट 3 हो गया। तो तीनों 1 2 1 1 1 2 एंड 2 1 1, तीनों में जो मेरा रिजल्ट है वो पार्ट 3 ही रहने वाला है। नाउ गोइंग रिकर्सिवली के sorry, let me just keep it back again, right? Okay, so now going recursively again कि अगर यहाँ पे मैंने 1 ही लिया होता, फिर यहाँ पे मैंने 1 लिया होता, फिर यहाँ पे मैंने 1 लिया होता 1, और फिर यहाँ पे मैंने 1 अगेन लिया होता, तब यहाँ पे मेरा सही बनता, मेरे पास 4 पीसेस आते हैं। दैट्स हाउ आई डील विद दिस, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये सब हमने रिकर्सिवली कॉल करा, हर एलिमेंट के लिए मैं देखता गया कैसे हो रहा है, वे एंड एट द एंड व्हाट आई विल डू, आई विल रिटर्न मैक्सिमम ऑफ पार्ट्स। जैसे मैक्सिमम यहाँ पे फिर मेरा एंड में पार्ट्स, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। सो द मैक्सिमम में मेरे पार्ट मुझे 3 रखना है, तो यहाँ पे मैंने पार्ट कर दिया मेरा 4, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विद दिस। नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट एंड देन वील सी के मैं कोड उसको टाइप कैसे करता हूँ, राइट। सो जस्ट लेट मी सेकेंड, okay, sorry for the disturbance, right? So now what you have to do, you have to deal with the code part. तो कोड में क्या देखना है, लेट्स से कि मेरा फंक्शन है int max cuts and what I'm given the length int x int y and int z। अब मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। अब इसमें क्या करूँगा कि आई विल टेक अ डीपी। मैंने क्या किया कि मैंने एक डीपी ले ली एंड इन दैट डीपी व्हाट आई हैव टू डू, इन दैट पर्टिकुलर डीपी मैं क्या करूँगा कि उस मीम सेट, मैंने उस डीपी को इनिशियलाइज कर दिया, -1 से द साइज ऑफ डीपी, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया इंट a इज इक्वल्स टू वेज, ठीक है। अभी यहाँ पे एक इसके इनपुट रहने वाले हैं n x y z and dp, and if a is negative we will see कि मैं कंडीशन क्यों डाल रहा हूँ, will return 0 और उसके अलावा मैं क्या करूँगा, return a। so this is how we are going to deal with this। अब मेरा जो मेन काम है वो है वेज फंक्शन का। वेज में मैं कैसे डीपी मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये अगर मेरा वेज फंक्शन है तो वेज फंक्शन का मैं आपको एक सूडो कोड लिख देते हैं, उसके बाद हम फाइनल कोड तो लिखने ही वाले हैं। तो सूडो कोड विल बी दैट कि अगर मेरा n नेगेटिव है, अगर जैसे अगर नैपसैक से कंपेयर कर दूँ, अगर मैं वेट डालते डालते ऐसा वेट निकाल लिया उससे कि मेरे अब बचा ही नहीं है, मतलब इन द सेंस कि वेट नेगेटिव हो रहा है। वेट नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे अगर मैं स्ट्रिंग कट करा, जैसे अगर मेरे पास 2 ही स्ट्रिंग बची है, सपोज आई एम हैविंग एक्सेस टू, लेंथ मेरी 1 है और मेरा जो x y z है वो तीनों ही 2 है, तो इट इज़ पॉसिबल टू कट दैट। अगर मेरी लेंथ ही 1 है और मैं कट 2 के लगा सकता हूँ, तो लेंथ इज़ लेस देन द कट, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस व्हाट विल डू, विल रिटर्न इंट मिन। अब मैं इंट मिन क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एट द एंड मैक्सिमम वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास सबसे इंट मिन होगा तो ऑब्वियसली वो एक्सक्लूड हो ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन आती है कि अगर मेरा n 0 है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न 0। क्यों, क्योंकि अगर मेरा कट 0 है तो फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी हो चुकी है, कट गई स्ट्रिंग, तो अब कोई ज़रूरत है नहीं। अब उसके बाद मैं चेक करूँगा कि इफ़ डी ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अगर मैंने सबको -1 से इनिशियलाइज़ किया था और मेरी डी अभी -1 नहीं है, मतलब मैं उस डी में पहले कुछ काम की वैल्यू डाल चुका हूँ। अगर मैं उस डी में काम की वैल्यू डाल चुका हूँ तो मुझे उसका कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं। सो इन दैट वी हैव टू रिटर्न द डी। उसके अलावा अब मुझे डी यहाँ पे बनानी है, तो अब मैं डी बनाऊँगा कैसे, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि इंट a में ले लूँगा वेज ऑफ, अगर मैं x से कट करता हूँ
ठीक है, मैं आई एम रिकर्सिवली कॉलिंग फॉर ईच एंड एवरीथिंग। पहले मैंने क्या किया था कि अगर मैं n 2 से इनिशियलाइज करता हूँ तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक 2 का कट दे सकता हूँ, वरना एक 1 का कट दे सकता हूँ, एक 1 का कट दे सकता हूँ, ऐसे करके 4 हो रहा था ना मेरा। सो दिस इज़ हाउ अगेन वी आर गोइंग टू डील विद दिस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि n माइनस एक्स, अगर मैं x से कट देता हूँ y, z और dp, सिमिलरली मैं b के लिए क्या करूँगा n माइनस वाई, c के लिए क्या करूँगा n माइनस जेड। तो तीनों को रिकर्सिवली कॉल कर लिया एंड एट द एंड मैं क्या स्टोर करूँगा, dp ऑफ n इज इक्वल्स टू maximum of a comma b comma c, right? So this is how we are going to deal with this.